A very good afternoon to all of you. I am Dr. Arva Chinikamwala, practicing in Pune and Liakat's classmate. So it is a honor. It is very good to be on this platform and introducing Sir Dr. Jani. So I welcome you all on behalf of Ignited Minds by PHF to this wonderful series of learning Guruji ke Saath Guruwar 2.0 that we started on 10th of April 2025 under the mentorship of our beloved Guruji, Dr. Liaquat Namole. We would like to share a few words about Promisilon Homeopathic Forum. Uh, Dr. Liaquat Namole started this with a vision to educate GPs and homeopaths to homeopathy. And he is successfully done this for almost 2000 general practitioners. So it is really wonderful, Dr. Liaquat Namole sir. We organize various activities regularly so that we can transform maximum homeopaths and we can transform GPs to practice homeopathy. There is no lack of proper guidance. So, Ignited Minds by PHF is a pioneer group of the learning of homeopathy. It started on WhatsApp and now it is on Telegram. Almost about 3000 doctors are learning daily on Telegram group. Recently, we completed the webinar series of 100 lectures on Zoom, which were available on our YouTube channel, that is Ignited Minds by PHF. This is session number 149 and I really feel honored to welcome and introduce today's speaker. Welcome Dr. Jani sir. A warm welcome to you today. So it is our privilege to welcome today's esteemed speaker, Dr. Dilip Jani. Sir has completed LCEH from CMPH Mumbai and further pursued CCMP from Sholapur in 2017. With more than 20 years of experience in general practice, he began his journey in homeopathy through the Sehgal system of learning during 2011-12, and he has sincerely dedicated his learning and practice ever since to homeopathy. Dr. Dilip Jani, a very senior and highly respected homeopath, not only for his vast clinical experience and guidance, but also for his simplicity, humility, and warm nature, sir. Sir, we are very honored to have you on this platform today, and we look forward to learning from you and your valuable experience and wisdom. So, welcome, sir. A huge round of applause for Dr. Dilip Jani, sir, and our mentor, Dr. Liaquat Namole, sir. So, sir, over to you now. Welcome, sir. Thank you. Welcome, Thank you, Dilip ma'am. bhai. Yeah, thank you very much, sir. One thing to be added about Dilip is he's my very close friend, and he is left his GP, wonderful, fantastic, flourishing GP in Mumbai, and he's practicing homeopathy, guys. That too on mind method. It takes a great courage and wisdom to shift over to homeopathy. So he has a special place in my heart always, and I am his fan. I'm his fan. I always read his cases, listen to his lectures, very meticulously with interest, and I love him. Thank you, Welcome, sir. Dilip. Thank you very much. Thank you very much. And yesterday was Dilip sir's birthday, so let us wish him a very belated happy birthday from Thank you, PHF sir. and all our family. Thank Yes, you very Dilip. much. Thank you, sir. Over to you, Rani. Thank you, sir. Shall we start, sir? Yes, please. Yes. Yes. Yeah. Thank you, sir. So thank you very much, all of you. Thank you, Dr. Liaquat, sir. Thank you, Dr. Arwa. Thank you, Dr. Mansi Patil. So आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. So before starting the session, gratitude to our these two masters, Dr. Hariman sir, because of whom we
वी हैव लर्न दिस साइंस। और डॉक्टर एम एल सेगल सर, जिनकी वजह से हमें माइंड मेथड पता चला, नहीं तो माइंड मेथड आज तक वर्ल्ड में किसी को मालूम नहीं था। जो भी माइंड रूब्रिक्स थे वो ऐसे ही पड़े थे रेपटरी में। तो ही वॉज द पर्सन कि जहाँ उन्होंने ये रूब्रिक्स हमें सिखाया कि कैसे ये रूब्रिक्स यूज करना। और ग्रेटिट्यूड टू अवर टीचर्स, डॉक्टर मोंती सर, डॉक्टर संजय सेगल सर, डॉक्टर राव सर, और टीचर डॉक्टर लियाकत सर, डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, और ग्रेटिट्यूड टू ऑल अवर मेंटर्स, और आप सभी डॉक्टर्स को ग्रेटिट्यूड। तो एक केस आज मैं बताता हूँ। एक लेडी का केस है जो मेरे पास 2024 में आए थे, दिसंबर 24 में आए थे मेरे पास। तो ये 30 ईयर ओल्ड लेडी थी जो अपने हस्बैंड के साथ में आई थी। उनको हाइपोथायरॉयडिज्म डिटेक्ट हुआ था और चेस्ट पेन था। तो इसके लिए हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए मेडिसिन चालू थी, फिर वो बंद कर दी थी, स्टार्ट करती थी, बंद करती थी, ऐसा होता था। और भाई चेस्ट इसको पेन फुल के स्क्रीन लिए, कर देना, दिलीप भाई हाँ, फुल स्क्रीन कर देना उसको। फुल स्क्रीन, नहीं तो फिर हाँ क्या नीचे आएगा। से, या हाँ नीचे से। हो गया ना? हो गया नहीं सर? हुआ। हाँ हाँ डन। हाँ, ओके। हाँ, तो चेस्ट पेन के लिए उन्होंने ईसीजी भी निकाले थे और मेडिसिन भी चालू किए थे, जो डिस्प्रिन है, क्लोपिडोग्रेल, और सब अपना प्लेटलेट के जो मेडिसिन, एंटी प्लेटलेट मेडिसिन रहते हैं, लिपिडीम, डिसलिपिडीमिया की जो मेडिसिन रहती है, वो सब स्टार्ट किए थे। लेकिन ये सब कुछ रिपोर्ट उनके पास नहीं था। मेरे पास सिर्फ जो थायराइड का रिपोर्ट लेके आए थे और सीबीसी का रिपोर्ट लेके आए थे, मैं बताता हूँ आपको। और डिसलिपिडीमिया जो है बाद में डिटेक्ट हुआ था, जब मैंने उनको बोला कि टेस्ट कर लो तो ये भी साथ में कर लो, ये भी पता चला था। और पेशेंट आईपीआर में, पेशेंट उनके हस्बैंड के साथ में रहते थे। एक 7 साल का बेटा था और एक 2 साल का बेटा था। तो पेशेंट का कुछ वर्जन ऐसा था, पेशेंट बोलती है कि चेहरा मेरा पूरा सूज जाता है, बॉडी पूरी फूल जाती है, 2 महीने से ज्यादा है। पहले था लेकिन मैंने इतना गौर नहीं किया, और अभी बॉडी हैवी हैवी लगती है, नींद बरोबर आती है। तो ये उनका रिपोर्ट था। यहाँ क्लियरली नहीं दिखाई देता था, इसके लिए मैंने ऊपर भी रखा था। जो 5 दिसंबर में, 5 दिसंबर 24 में उनका TSH 12.6 था। और उस टाइम में उनका जो सीबीसी था, सीबीसी में हेमोग्लोबिन 10.4 था, और प्लेटलेट 61,000 था। तो प्लेटलेट का मैंने उनको बताया कि इसमें तो प्लेटलेट भी 61,000 है। तो उनका हस्बैंड ने बताया, ये प्लेटलेट उनको पता था लेकिन ये उन्होंने उतना ज्यादा गौर नहीं किया। लेकिन मेरे ध्यान में आया कि ये भी कुछ एबनॉर्मल है। तो मैंने उनको बताया कि देखो ये प्लेटलेट भी 61,000 है। तो हस्बैंड क्या बताते हैं कि डॉक्टर साहब, इसके लिए हम लोग नहीं आए। ये क्या होता है कि उनको जब भी सीबीसी कराए, ये रिपोर्ट कराए, तो हमेशा प्लेटलेट्स कम ही आते हैं। मैं बोला फिर आपने कुछ दवाई वगैरह नहीं कराया? तो बोला नहीं, ऐसे कुछ तकलीफ नहीं होती, इसके लिए दवाई नहीं कराया। मैं बोला ये जो लास्ट 2 डिलीवरी हुई उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ था, ब्लड वगैरह ज्यादा गया था? तो बोला नहीं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। फिर और मैंने पूछा कि आपको कभी ऐसा ब्लड के स्पॉट्स आते, जो हम लोग बोलते हैं ना एकाइमोटिक स्पॉट्स आते हैं, कि लाल कलर के स्पॉट्स आते हैं क्या स्किन में? तो बोले नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं आते। तो मैंने सोचा ठीक है। एक माइंड में था कि आईटीपी वगैरह हमको रूल आउट करना चाहिए, लेकिन अभी पेशेंट को बॉदर नहीं था, कुछ तकलीफ भी नहीं था, और इतना प्लेटलेट लो भी नहीं था। तो फिर मैंने ये छोड़ दिया। मैं बोला ठीक है, आगे देखते हैं। और उस टाइम में उन्होंने ब्लड शुगर भी कराया जो 93 था, और क्रिएटिनिन भी कराया था जो 0.83 था। ठीक है। ये सब जो रिपोर्ट है वो 5 दिसंबर 24 का है। और मेरे पास ये 7 दिसंबर को आए थे, 7 दिसंबर 24 को। उन्होंने, उनके एक रिलेटिव थे जो जिनका थायराइड होम्योपैथिक से कम हो गया था। तो इसके लिए वो थायराइड का माइंड में सोच के ही मेरे पास आए थे। तो जब भी मैंने केस लिया, तो बोलती है कि 2017 में भी हल्का सा थायराइड आया था, फिर 7 महीने में दवाई बंद कर दिया था। दूसरे बच्चे के टाइम में भी ऐसा हुआ था, मतलब दूसरे बच्चे के टाइम में भी थायराइड आया था, दवाई खाया रहेगा, फिर बंद कर दिया रहेगा। फिर बोलती है फेस है ना, कभी कभी सूज जाता है, तेजी से वजन भी एकदम बढ़ रहा है, अभी उसका वेट भी बढ़ते जा रहा है। जिस हिसाब से मैं खाती हूँ इस हिसाब से पेट साफ नहीं होता। पहले से बाहर का मैं खाना नहीं खाती, बाहर का खाना पसंद नहीं।
साफ सफाई से बनाया गया कि क्या पता नहीं, मतलब ये शादी के पहले से ही उसको बाहर का खाना नहीं खाती थी, बाहर का खाना उसको पसंद ही नहीं। और बोला मेरे घर से ही आदत नहीं बाहर का खाने की, मतलब शादी से पहले से ये बाहर का खाना नहीं खाती। फिर बोले 4-5 महीने से शरीर एकदम भारी भारी लगता है, कभी कभी कपड़ा टाइट लगता है, कभी लूज लगता है। मैं इतना फास्ट चलने वाली अभी चलती हूँ तो हाफ लगती, मतलब पहले ये घर का पूरा काम मतलब दौड़ दौड़ के करती थी, लेकिन अभी नहीं कर सकती है। अभी उसको डिस्निया होता है, हाफ लगती है। हार्ट के नस की भी तकलीफ हुई थी, दवाई चालू करी थी, फिर मैंने बंद कर दी, क्योंकि मुझे पूरे घर का काम करना रहता था। कोई भी चीज पकड़ो तो ऐसा लगता है कि छोड़ दो। अब वह दवा बंद करके 5 महीना हो गया, मतलब ये दवाई चालू करती थी और बंद करती थी। और बताया कि ये फिजिशियन को भी बताए थे, उन्होंने दवा चालू करे थे, जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह की भी दवा चालू करे थे, खून पतला होने की दवा चालू करे थे, लेकिन ये मेरे को घर का काम करने का रहता है, इसके लिए फिर मैंने ये सब दवाई बंद कर दिया। फिर बोलती है मेरे को अगर कुछ हो जाएगा तो मेरा बच्चों का क्या होगा। तो मैंने पूछा उनको कि ऐसे क्यों सोचते हो, कि आपके मायके में कोई नहीं है क्या। तो पेशेंट बोले हम लोग 7 बहनें हैं और 2 भाई हैं, मैं सबसे छोटी हूँ, मेरी शादी को 10 साल हुए, मेरी 2 बड़ी बहनों को भी थायराइड है, ऐसा लगता है अभी सोऊंगी तो उठूंगी ही नहीं। फिर वापस से बोलती मेरे बच्चों का क्या होगा। तो यहाँ पे उस जो एक ऑब्जर्वेशन था, यहाँ पे वो थोड़ा रोने लगी थी और अपने मतलब हाथ से आंसू पोंछ रही थी, जो भी आंसू आए नीचे वो पोंछ रही थी। फिर मैंने कुछ पूछा नहीं, तो थोड़ा पॉज हुआ था, उसके बाद में वापस से बोलती अपने आप को तसल्ली देती हूँ कि ऊपर वाला बहुत बड़ा है। फिर यहाँ पे मैंने उनका चाइल्डहुड के बारे में पूछा कि बचपन में कैसा था, आप मतलब पेरेंट्स के घर में आपका नेचर वगैरह कैसा था, क्या था, वो पूछा। तो बोली कि 1.5 महीने की थी मैं जब मम्मी मेरी गुजर गई थी, 5-6 साल की थी तब पापा गुजर गए। पापा से कुछ झगड़ा हुआ तो मम्मी सीढ़ी से कूद गई थी, मतलब मम्मी ने सुसाइड कर लिया था। पापा को सांस की तकलीफ थी। हम सभी भाई बहन बड़ी बहन के पास रहते थे, मतलब जब से इन लोग अपने बड़ी बहन के पास रहते थे। थोड़ा फ्री होकर बैठी तो वही दिमाग में आता है, मतलब ये वापस बचपन का सोचने लगती। बच्चे का ही दिमाग में चलते रहता है, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, किसी के ऊपर छोड़ नहीं सकते, जो माँ बाप पाले वह कोई नहीं पाल सकता। फिर बोलती बहन लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हर चीज मेरे लिए अच्छे से अच्छे की है। स्वभाव ज्यादा गुस्सा भी नहीं, जैसा देखती हूँ वैसा डल जाती हूँ। जैसे वह मीन्स मेरे हस्बैंड जैसे वो स्ट्रिक्ट है, वैसे मैं भी थी, मतलब पहले ये भी बहुत स्ट्रिक्ट थी शादी से पहले। फिर बोलते हैं ज्यादा गुस्सा दोनों तरफ से है तो घर नहीं चलता, मतलब दोनों जना अगर गुस्सा करेगा हस्बैंड वाइफ तो फिर घर नहीं चलेगा। इसके लिए मैंने अपने आप को शांत करते चले गए। गरम गरम होता है तो दोनों तरफ से घर नहीं चलता, दोनों अगर गर्म हो जावे तो फिर घर नहीं चलता। इसके लिए अपने आप को फिर डाल दिया। बोलते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, और शोर दूसरे लोग सुनेंगे बिगड़ेगा अपना, इसके लिए शांत हो जाओ। मेरे को लगता है सब चीज अच्छे से करूं, कोई टेंशन न होवे घर पे। और अभी जो रिपोर्ट निकाले थे 5 दिसंबर का, वो रिपोर्ट भी मैंने अपने खुद जिद से करवाई थी। उसका हस्बैंड तो रेडी नहीं था ये रिपोर्ट कराने के लिए, वो तो मना कर रहे थे, लेकिन रिपोर्ट देखकर वो खुद ही डर गया और फिर उसके हस्बैंड ही उनको लेके आए थे। और एक ऑब्जर्वेशन जो था, उसका हस्बैंड साइड में ही बैठा था उसके साथ में, और वो एकदम मतलब हाइट भी अच्छी थी, एकदम पर्सनालिटी एकदम स्टाउट थी, जो बॉडी बिल्डर टाइप बोलते हैं ना वैसे टाइप की उनकी पर्सनालिटी थी। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले उन लोग मेरे को पूछे कि कितने टाइम में फर्क होएगा, कितना टाइम दवा खानी पड़ेगी, कितना महीना होएगा, रिपोर्ट कभी कराए। तो मैंने बोला कि देखो टाइम तो लगेगा, अभी थायराइड भी है और आपको ये प्लेटलेट भी कम है, प्लेटलेट का तो पता नहीं क्यों कम है। थायराइड का एक टाइम सोच सकते हैं, चलो ठीक है हाइपोथायराइड हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो बोले कि हम लोग दवा चालू कर दे, लेकिन 1 हफ्ते के बाद में रिपोर्ट कराएंगे और देखेंगे कि कैसा है। अगर थोड़ा सही हो जाता है तो हम लोग दवा कंटिन्यूस करेंगे, नहीं तो फिर
नहीं करेंगे। मैं बोला ठीक है, लेकिन एक हफ्ता है ना, बहुत शॉर्ट टाइम है। थायराइड का रिपोर्ट कम से कम 3 महीने पहले कभी ऑल्टर नहीं होता है, कम से कम 2 से 3 महीना जाता है। उसके कम टाइम में हो गया तो ठीक है, लकी है, लेकिन एटलीस्ट 3 मंथ तो टाइम आपको देना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, हम लोग दूसरा रिपोर्ट कराएंगे और देखेंगे कि कैसा है, खून भी कम है, ये प्लेटलेट में। बोला ठीक है, कैसा। तो मैंने दवा चालू किया, और जब भी इस दवा स्टार्ट किया उसके बोले साथ में आप लिख के भी दो क्या क्या रिपोर्ट कराने का। तो मैं बोला ठीक है, आप सीबीसी का रिपोर्ट कराते हैं तो उसके साथ में एक काम करो, लिपिड प्रोफाइल भी करा लो। चेस्ट पेन था, हाफ लगती थी, ये सब होता था, तो इसके लिए मैंने उनको लिपिड प्रोफाइल भी करा दिया। तो दवा जो 7 दिसंबर से स्टार्ट किया, तो उन्होंने 21 दिसंबर को रिपोर्ट करा है, 21 दिसंबर 24 को। तो पहले कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट मेरे पास लाए नहीं थे ये, इसके लिए मैंने कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट कराया। तो उसमें देखो टोटल कोलेस्ट्रॉल 277, ट्राइग्लिसराइड 270, HDL 40, LDL 183, VLDL 54, और जो कोलेस्ट्रॉल HDL का रेशियो, LDL HDL का रेशियो, ये सब लेवल उसका ज्यादा था। ये HDL थोड़ा सा नॉर्मल के जैसा हम लोग बोल बोल सकते हैं, बाकी सब उसका लेवल ज्यादा था। और जो 21 दिसंबर को उन्होंने रिपोर्ट जो कराए, उसमें लकीली जो है प्लेटलेट है ना 72,000 आया था। HB लास्ट में भी 10.2 था, और MCH ये सब इंडाइसिस भी कम था, तो वो कम था। 10.2 सेम आया था HB, और लेकिन प्लेटलेट उनका 72,000 आया, तो पहले आया था 61,000। तो यहाँ पे प्लेटलेट 72,000 आया, तो उनको थोड़ा हो पाया कि नहीं अभी होम्योपैथिक दवा असर करेगी, क्योंकि होम्योपैथिक उन लोग फर्स्ट टाइम ले रहे थे। तो उनको भरोसा आया मेरे पर कि नहीं अभी देखेंगे, हम लोग दवा थोड़ा कंटिन्यूस करते हैं, फिर आप बोलते वैसा हम लोग रिपोर्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने उनको समझाया, देखो ये इतना भी 61 का 72 भी बड़ा, अगर इतने दिन में 15 दिन में, तो भी है ना बहुत बड़ी बात है। और मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी बात है, मैं भी खुश होता हूँ कि भाई इतना टाइम में जो हमेशा प्लेटलेट आपका कम आता था वो बढ़ गया। अभी क्या डायग्नोसिस था उसके पीछे वो तो पता नहीं था। और मैंने उनको ये भी समझाया, देखो अगर आपको दवा नहीं लेना है, भरोसा नहीं आता है, मत लो, चलेगा, लेकिन एक चीज ध्यान में रखो, आपको थायराइड के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, और ये जो प्लेटलेट कम आया वो कोई नहीं समझेगा, उसके लिए हेमेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। मतलब ये समझ के लो एटलीस्ट 2 से 3 डॉक्टर का काम है, जो मेरे को अकेले को करने का है। तो आप सोच लो ये इतना आसान बात नहीं है आपका केस। तो बोले ठीक है, आप दवाई चालू रखो। ठीक है। तो बाद में उन्होंने रिपोर्ट निकाले जो 9/4/25 को, मतलब ऑलमोस्ट 4 महीने के बाद का ये रिपोर्ट है। तो यहाँ पे मैंने एक CTQ पूछा था, वो हम लोग डिस्कस करते हैं बाद में। तो अभी ये 4 अप्रैल को जो रिपोर्ट निकाला उन्होंने, तो TSH आया था 6.35, जो 12 के ऊपर था। उसके बाद में प्लेटलेट जो 61 था 72 आया था, और ये प्लेटलेट आया 1.44। HB अभी भी सेम था 12.2। जो इंडाइसिस था उसमें थोड़ा सा फर्क था, MCH MCHC उसमें थोड़ा सा फर्क था। तो मैंने सोचा ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी हो सकता है, लेकिन प्लेटलेट कम क्यों होता था वो समझ में नहीं आता था, लेकिन इतना बड़ा अगर तो एक अच्छी बात थी। उसके बाद में देखो जो भी कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट था वो पूरा कम हो गया था, 270 जो था 185 आ गया। ट्राइग्लिसराइड जो 106 था, LDL 183 पे था, वो 118 आया, VLDL 21 आया। और HDL जो 40 पे था, वो HDL जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो भी बढ़ गया था, 46 पर आया था। तो ये समरी रिपोर्ट की है। ये 5 दिसंबर का है 24, ये 9 अप्रैल का है। तो 12.6 था, यहाँ से ये आया 6.35। और जो ये CBC का जो रिपोर्ट है, देखो हेमोग्लोबिन सेम था, TC भी ऑलमोस्ट आगे पीछे सेम था, लेकिन प्लेटलेट जो 61 था वो 72 आया, और लास्ट में आया 144। ठीक है। और जो लिपिड प्रोफाइल का रिपोर्ट था, वो देखो 24 दिसंबर को जो मैंने कराया था उनके पास से जबरदस्ती से, वो 277 था, वहां से आया 285। ट्राइग्लिसराइड 270 106 आया, HDL बढ़ गया, गुड कोलेस्ट्रॉल। और जो ये बैड कोलेस्ट्रॉल था, LDL VLDL 183 का 118, ये VLDL 54 का 24, और ये रेशियो भी दोनों जो है वो भी काफी कम हो गए थे। ठीक है। तो थोड़ा इनपुट्स लेवे, फिर डिस्क्लोज करते हैं। हेलो, आप जी इनपुट्स सर। देंगे 2 4? हाँ। हाँ, किसी को बोलना है तो ले सकते हैं।
गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। सर, इसको लेडी को सबसे ज्यादा चिंता उसके बच्चों की ही है। बार बार हिस्ट्री में 2-3 बार उसने बोला कि मेरे मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। क्योंकि उसके खुद के पेरेंट्स बहुत छोटी थी तभी ही एक्सपायर हो गए थे, तो उसको वो चीज अभी भी कैरी कर रही है वो दिल में कि मैं जैसे मेरे पेरेंट्स एक्सपायर हो गए, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे कैसे बड़े होंगे। तो वो घूम फिर के उसके दिल में ये बात तो बहुत है ही। और यस। उसको हाँ, होम्योपैथी के लिए भी थोड़ा सा वो तो है कि बराबर होगा या नहीं इस ट्रीटमेंट से। शी इज हैविंग सम डाउट अबाउट दिस ट्रीटमेंट ऑल्सो। एंजाइटी चिल्ड्रन भी है उसकी, एंजाइटी फ्यूचर भी है। या हेलो। हाँ सर, उतना तो समझ में आया। हेलो। हेलो सर। या थैंक यू मैम। अच्छा इनपुट दिया आपने। थैंक यू मैम। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ हाँ। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। जी सर, ये केस में जैसे कि ये लेडी को हाइपोथायरॉयडिज्म का इशू था और मतलब जो जैसे कि वेट भी बढ़ रहा था, कभी वो बोल रही थी, और डिस्निया का भी इशू था। तो जैसे वो बता रही है उनका जो हिस्ट्री में है कि हस्बैंड तो थोड़ा डोमिनेटिंग ऐसे लगा कि दोनों डोमिनेटिंग टाइप ले, लेकिन ये अभी शांत हो गई ऐसे बता रही है। और सेकंड चीज है कि बच्चों को अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो बच्चों का क्या, वो उसकी माइंड में है। क्योंकि तभी उसकी मम्मी मम्मी और पापा दोनों का डेथ हो गया था, है ना, तो बचपन से ये ऑर्फन वाला ये वाला स्टेट था। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि एक थॉट ऐसे आ रहा है कि ये लेकिन उनकी बड़ी बहन बहन लोगों के साथ उतना अच्छा था तो ऑर्फन नहीं हो सकता है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा जो ये है मोर्बिडिटी, ऐसे लग रहा है कि एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट हर ऐसे वाला स्टेट है। अगर ये बहुत ज्यादा कर रही है, सेल्फलेस है ये और एक बात आप बताए कि वो खुद का मतलब वो एक ब्लेस्ड स्टेट में है, मतलब जैसे कि शुक्रिया अदा कर रही थी, गॉड को बता रही थी। तो अभी कंटेंट है, अगर खुद को अगर डेल्यूजन वेल्थ है कि मैं अच्छे से हूँ और एंगेज चिल्ड्रन, तो एक सल्फर का थॉट आ रहा है सर इसमें। जी ऐसा सर, ग्रेटिट्यूड थैंक यू। वाली फीलिंग ये नहीं थी गॉड के लिए जो आप बोल रहे हैं ना, वैसा कोई फीलिंग नहीं थी। नहीं, आप बोल रहे कि सी इज इन द ब्लेस्ड स्टेट, मतलब उसको लग रहा है कि मतलब जो भी है सही है। और ओनली अगर एंगेज चिल्ड्रन, अगर हम लोग मतलब वो वेल्थ भी हो सकती है उसकी, है ना, तो हम्म। अगर एंगेज चिल्ड्रन अगर कंटेंट जो भी स्टेट में है अगर वो, और फ्रिवुलस भी है ये लेडी, क्योंकि वो बार बार इतने इतना एक इशू है लेकिन वो उसको ना इतना लाइटली ले रही है। आप बोले कि नहीं अभी 61,000 है आपका, प्लेटलेट बहुत कम है, तो तभी भी उसका कंसर्न है, मतलब फ्रिवुलस अगर लेते हैं एंगेज चिल्ड्रन अबाउट लेते हैं, और एक कंटेंट स्टेट में मतलब वो अपने इसमें है कि उसका वेल्थ अगर दिखा रही है, तो वो एक हो सकता है कि क्योंकि आप नरेट किए ना, हम लोग तो पेशेंट नहीं देखे, तो एक सल्फर का हाँ। थॉट आ रहा है। जी सर, थैंक यू। ओके थैंक यू। हेलो सर। या गुड आफ्टरनून सर, बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। सर ये केस में पहले उनकी जो पास हिस्ट्री है, उनकी वजह से उनको उनके बच्चे को लेके बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। वो एक ज़्यादा प्रोमिनेंट लगा। और वो अपनी हेल्थ को लेकर फ्रीवलस है कि कभी मेडिसिन शुरू किया कभी बंद कर दिया। एक दो बार ऐसा हिस्ट्री में आया है। और उनका हस्बैंड का डोमिनेशन लगा। तो मेरा सर सिर पे आ रहा है एंजाइटी चिल्ड्रन और फ्रीवलस एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन को लेके। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा है, अच्छा इनपुट दिया। हेलो।
हाँ, बोलो सर। नमस्ते सर, सुनाई दे रहा है सर? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। हाँ 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 सर, ये बहुत यील्डिंग है, फ्रिवलेस है, उसे पता है। जब डॉक्टर ने मेडिसिन स्टार्ट किया होगा तब बताया होगा कि यू हैव टू टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली, थायराइड के वगैरह, लेकिन वो नहीं ले पाई क्योंकि शी हैज केयर्स फुल ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स अबाउट। उसने कहा कि मुझे घर के काम रहते हैं तो मैं भूल जाती हूँ या फिर नहीं लेती हूँ। एक बच्चों की चिंता कंटिन्यूअसली है, वीपिंग वाइल टेलिंग सिकनेस है बात करते करते, और यील्डिंग भी लगी सर, बिकॉज उसे झगड़ा वगैरह पसंद नहीं है तो वो छोड़ देती है। लोग सुनेंगे वो उसे अच्छा नहीं लग रहा है, और ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है। किसी ने उसे बताया कि यहाँ पे हाइपोथायरॉइड किसी का ठीक हो गया था तो वो खुद भी हस्बैंड को ये करके बोल के लेने के लिए आ गई है दवाई। ड्वेलिंग ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल अकरेंसेस है, जब भी फ्री हो जाती है तब उसे सब याद आ रहा है। तो सर ये सेपिया का फीलिंग आ रहा है, एंजाइटी चिल्ड्रन भी है, डोमिनेशन भी थोड़ा लग रहा है सर, बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड्स का जो आपने ये कहा, डिस्क्रिप्शन दिया वो, और वो खुद भी बोली है कि स्ट्रिक्ट है हस्बैंड थोड़े। तो सर ये सेपिया का फीलिंग है, सेपिया लग रही है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। और भी कोई बोलेंगे? हेलो। हाँ, हेलो, बोलिए ना। हाँ, मैं रेमेडी को लेके नहीं बोलूँ, मैं थोड़ा सा रुब्रिक्स हाँ। को लेके, जो है कुछ लोग जैसे फ्रिवुलस लग रहा है ना। हम्म। तो अभी लास्ट जो इन्होंने सीपीआ बोला वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्लोज लगा। क्योंकि फ्रिवुलस में क्या होता है कि लेता है छोड़ता है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम एक दो दिन की तो नहीं है, सालों साल की है। यूं कहें कि लाइफ लॉन्ग है ना। तो वो लेते 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 आदमी कई बार, तो मैं समझता हूँ फेडअप भी हो जाता होगा ना, बोर हो जाता होगा कि कितना ले। एक दिन दो दिन की बात नहीं है ना। तो क्या यहाँ फ्रिवुलस लेना चाहिए? मेरा थोड़ा सा एक डाउट है मेरे को फ्रिवुलस का लेके। हाँ सर, बता दो। एनालिसिस के टाइम बता दो, वही सर। हाँ। थैंक यू सर। मतलब हमको ये सोचना है कि वो जो दवा ले स्टार्ट करती थी, बंद कर देती थी, क्यों करती थी? हाँ, ये यहाँ थोड़ा सा मुझे उसके, इम्पोर्टेंट हाँ, लग रहा है। उसके पीछे का वाई देखना बहुत जरूरी। ये ऊपर से अगर हम लोग लेंगे तो ये फ्रिवोलिस ही लगेगी। जो हम लोग यूजुअली सोचते हैं ना, दवा स्टार्ट करते हैं बंद करते हैं, तो यूजुअली हम लोग फ्रिवोलिस में ही जाते हैं। लेकिन अगर उसके पीछे का वाई देखेंगे तो अलग ही है ना। हाँ, मुझे वही लगा ना, खाते खाते आदमी बोर भी हम्म। कितना दिन खाएगा, एक दिन दो दिन का, चार दिन का, रोज 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 वही कहानी। तो ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पर फ्रिवुलस करती हुई नजर आ रही है। ये सिटी क्यों बताता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने, यही मेरे माइंड में था कि यहाँ पे मैंने एक सिटी क्यों पूछा था कि सीपीएस से ये इससे डिफरेंशिएट करने के लिए। मैं बोला आप जो काम करती हो तो, या खाना पकाती हो, तो ऐसा लगता है कि आपको
आपका हस्बैंड ये कुछ अच्छी बात बोले या आपको अप्रिशिएट करे, तो बोले हाँ, वो अप्रिसिएशन उसको अच्छा लगता था। बोला अगर वो बोले ना कि तूने बहुत अच्छा खाना बनाया तो मुझे अच्छा लगता है, और भी मैं खाना बना बना सकती हूँ, तो ऐसा लगता है कि और भी कुछ बनाओ ऐसा। तो ये मैंने मेरा सिटी टू था। और जो फ्रीवलस था वो मैंने क्या सोचा कि ये दवा स्टार्ट करती है बंद करती है इसके लिए करती है कि उसका हस्बैंड जो है ना वो डोमिनेटिंग नेचर का था। तो डोमिनेटिंग नेचर का था इसके लिए भी क्या होता है कि वो उसको अल्टीमेटली पैसा खर्चा होता है नहीं देता रहेगा, या उसका ट्रीटमेंट बराबर नहीं करता रहेगा। क्या होता है, हस्बैंड जब भी लेके जाता है, जब भी ये डॉक्टर के पास जाती है ना, तो हस्बैंड नहीं लेके जाता रहेगा तो ये भी कंटाल के छोड़ देती रहेगी कि जाने दो अभी जो भी होगा तो। लेकिन फिर भी वापस से दवा लेने क्यों आती है, उसको अपने बच्चे की फिक्र थी कि भाई मेरे बच्चे का क्या होगा। क्योंकि उसका पूरा जो कंसर्न था वो यही था कि मैं नहीं रहूंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मुझे कुछ हो गया तो बच्चे को कौन देखेगा। और ये उसके माइंड में क्यों चल रहा था कि वो ऑलरेडी भुगत चुकी थी बचपन में, तो उसके लिए उसको बच्चे लोग की फिक्र ज्यादा थी। तो ये अर्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली कार्सिनोसिन लगती है सर मुझे, सिटी क्यू देखने के बाद तो कार्सिनोसिन लग रही है सर अभी। इसके लिए सिटी को मैंने लास्ट में बताया। ये कार्सिनोसिन ही है सर फिर। हाँ, हाँ, तो ये कार्सिनोसिन ही है। जो फर्स्ट डोज मैंने दिया था 7 दिसंबर 2024 को, वो कार्सिनोसिन 30 दिया था। तो कार्सिनोसिन 30 दिया था सिंगल डोज। उसके बाद में उन्होंने जो 21 को कराया रिपोर्ट, तो मेरे माइंड में भी ये टेंशन था कि रिपोर्ट कैसा आएगा। वो तो बोलती थी कि मेरे को अच्छा लग रहा है, अभी कुछ थॉट्स नहीं आ रहे, माइंड भी अभी थोड़ा पीसफुल है, ये ठीक है, लेकिन अभी रिपोर्ट इतना कम टाइम में क्या बोलेगा, कैसे मालूम पड़ेगा ना। तो ये भी मुझे एक टेंशन था। तो उनका जो 30 देने के बाद में जो प्लेटलेट 72 आया, तो जहां से मेरे को रिलीफ हो गया कि नहीं यार, मेडिसिन काम कर रही है। उसके बाद में फिर मैंने 30 रिपीट किया, फिर वापस एवरी 15 डेज में उसको 200 देता था, क्योंकि मेरे माइंड में भी टेंशन था कि ये कभी ना कभी रिपोर्ट कराएंगे 2 महीने 3 महीने के बाद में। और क्या होता है, पेशेंट को घाई भी रहती है, और घाई में हम लोग बहुत टाइम रिपीट करके कभी वो केस हम लोग है ना स्पॉइल भी कर देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन लकीली यहाँ पे स्पॉइल नहीं हुआ। तो 200 वापस मैंने 2 डोज दिए थे कुछ। और जब भी वो फाइनल रिपोर्ट निकालने गए अप्रैल में, तो उसके पहले कुछ 1 वीक 10 डेज पहले जब भी आए थे, तो जब भी मैंने उसको कार्सिनोसिन लास्ट में 1 एम दिया था। तो 1 एम देने के बाद में ये उनका फाइनल रिपोर्ट जो हम लोग ने देखे वो था। ठीक है, तो उसका एनालिसिस करते हैं। देखो एनालिसिस मैंने मतलब क्या सोचा था, ये बचपन में क्या हो गया कि उनके पेरेंट्स उन्होंने खो दिए। दिस फीमेल लॉस्ट हर पेरेंट्स इन द अर्ली चाइल्डहुड। नाउ व्हेन शी फील्स दैट माय चिल्ड्रन शुड नॉट सफर लाइक मी, मेरे बच्चे भी मेरे जिस मुझे मैंने जो सफर किया वो उनको नहीं होना बनता। सी डज नॉट हैव एनीवन टू सपोर्ट हर इन द पेरेंटल हाउस। अभी वहां पे वो किसको बोल नहीं सकती, इसके लिए हस्बैंड का जो डोमिनेशन है वो सहन करती है, क्योंकि वहां पे भी कोई है ही नहीं कि जो उसको सपोर्ट करे, पेरेंट्स तो है ही नहीं। जो भी है वो भाई और बहन उन लोग ही हैं, और वो भी सब अपनी लाइफ मतलब जिंदगी में रहते हैं। इसके लिए वहां पे उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। सी इज मोर वरीड अबाउट हर चिल्ड्रन देन हर सेल्फ। मतलब जो भी है तो उन्होंने वही बोला कि बच्चों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। हर हस्बैंड इज डोमिनेटिंग पर्सनालिटी एंड बिकॉज ऑफ अबव रीजन सी येल्स टू द सिचुएशन टू मेंटेन द पीस एट होम। उन्होंने बोला ना कि एक दो हाथ से ताली है ना, कभी भी दो हाथ से बचती है। और घर में कुछ ऐसा माहौल होएगा तो क्या होगा, सुनेंगे तो आजू बाजू वाले लोग। और यहाँ पे झगड़ा नहीं होने के लिए, घर में पीस मेंटेन करने के लिए वो सब यील्ड कर दे। तो देखो मैंने जो रूब्रिक्स लिए थे वो बताता हूँ। मेरे को कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, ये देखो 2 3 बार उसने बोला, ऐसा लगता है अभी सो जाऊंगी तो उठूंगी ही नहीं, उठूंगी नहीं तो मेरे बच्चों का क्या होगा। बच्चे का ही दिमाग में चलते रहता है, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, किसी के ऊपर छोड़ नहीं सकते। जो माँ बाप पाले वही कोई, वैसा कोई नहीं पालता। तो ये क्लियर कट एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट, यही मेरा एंट्री रूब्रिक था। उसके बाद में देखो क्या बोलती है, जैसा मैं देखती हूँ वैसे डल जाती हूँ। मतलब जो भी सिचुएशन जैसा आती है वो यील्ड कर देती है। अभी उसकी एज है 30 ईयर्स, तो उसका मैरिज होके 10 साल हुआ बोलती है, मतलब 20 साल में तो उसका मैरिज हो गया था। जैसे वो स्ट्रिक्ट है वैसा मैं भी थी, मतलब उसका हस्बैंड जो स्ट्रिक्ट है ना वैसा ये भी पहले था, पहले ये भी थी, क्योंकि घर में ये सबसे छोटी थी।
लेकिन जैसा शादी हुआ तो वैसा वो क्या होता है, डलते गई, जैसा जैसा हस्बैंड बोले वैसे। फिर बोलते हैं ज्यादा गुस्सा दोनों तरफ से रहे तो घर नहीं चलता, इसके लिए अपने आप को शांत करते चली गई। यहाँ पे हम लोग बहुत ऐसे बहुत सारे रूब्रिक्स ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी मेडिसिन है कि एंगर सप्रेस ये सब भी ले सकते हैं। गरम गरम होता है तो दोनों तरफ तो घर नहीं चलता, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों अगर गर्म है तो घर नहीं चल सकते। तो यहाँ पे अपने आप को ढाल दिया, ये ढाल दिया मतलब क्या कि यील्डिंग डिस्पोजिशन। यील्डिंग डिस्पोजिशन क्यों करी उसने, बिकॉज टू मेंटेन द हार्मोनी एट होम, हार्मोनी डिजायर फॉर। अगर बोले कि तूने आज बहुत अच्छा खाना बनाया, ये जो मैंने सिटी को पूछा, तो लगता है कि कुछ और बनाओ, ये डिल्यूजन अप्रिसिएटेड सी नॉट और अप्रिसिएशन डिजायर। जो हम लोग सोचते हैं ना कि उसको अप्रिसिएशन लिए मिले तो अच्छा लगता है। फिर मैंने पूछा ऐसे क्यों सोचते हो, आपके मायके में कोई नहीं है? तो ये रूब्रिक था, डिल्यूजन प्रोटेक्शन डिफेंस हैज नो, मतलब उसके पीछे किसी का प्रोटेक्शन नहीं है, किसी का डिफेंस नहीं, उसके पीछे कोई देखने वाला नहीं है। अगर वो मायके में गए तो कौन है, उसके पास कोई नहीं है। तो उसके लिए बोलने वाला कौन है? अगर पेरेंट है तो कभी पेरेंट बोल भी सकते हैं, मतलब सन इन लॉ को, जमाई को, कि भाई तू ऐसा क्यों करता है, ये मेरी बेटी है, उसको क्यों परेशान करता है। लेकिन इसके लिए कौन है बोलने वाला? कोई भी नहीं। रिपोर्ट भी मैंने अपनी जीत से कराई, वह तो मना कर रहे थे। ये भी समझ में आता है कि यहाँ पे हस्बैंड का क्लियर कट डोमिनेशन था। फिर बोलते मेरे को लगता है सब चीज अच्छे से करो कि कोई टेंशन ना हो घर पे। मतलब अगर टेंशन नहीं होता तो वो चीज इतना अच्छे से नहीं करेगी, लेकिन जब भी टेंशन है तो उसको लगता है कि नहीं मैं अच्छे से करूँ, लोग मुझे अप्रिशिएट करें और अच्छे अच्छे मैं काम करूँ। तो ये अनटाइडी एक्सेप्ट व्हेन ही हैज टू परफॉर्म, ये रूब्रिक मैंने रिट्रो में लिया था कि जब भी ऐसा ही सी अनटाइडी, बट जब भी परफॉर्मेंस करने का आता है तो वो टाइडी हो जाता। तो ये सब रूब्रिक था, एंजाइटी चिल्ड्रन, यील्डिंग डिस्पोजिशन, हार्मनी डिजायर, अनटाइडी एक्सेप्ट व्हेन ही हैज टू परफॉर्म, डेल्यूजन प्रोटेक्शन डिफेंस हैज नो, और डेल्यूजन अप्रिसिएटेड सीज नो। तो यहाँ पे कार्सिनोसिन एकदम क्लियर कट आती थी, तो कार्सिनोसिन वॉज द मेडिसिन। यहाँ तक कुछ क्वेश्चन है? हेलो। नहीं सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। तो कार्सिनोसिन को अगर थोड़ा समझते हैं, ऐसा तो ये बहुत बड़ी मेडिसिन है। कार्सिनोसिन जो भी डोमिनेशन में जाता है तो क्या करता है, कार्सिनोसिन है ना, वो गिव अप कर देता है और खुद को ये पीछे रख देता है। जैसा ये लेडी ने खुद को पीछे रखती है और चिल्ड्रन को देखती है और दूसरे के ट्यून के हिसाब से ये डांस करती है, दूसरों को प्लीज करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे रूब्रिक है प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज अदर, डांसिंग। और आईपीआर को प्लीज, उसको पता है अगर इसको प्लीज नहीं किया तो क्या होगा, तो वो रिप्रोच करेगा, उसको मतलब रिजेक्ट कर सकता है, वापस मैके में भेज देगा। ये सब उसके माइंड में हमेशा फियर चलते रहता है। तो सेंसिटिव टू रूडनेस, फियर ऑफ रिजेक्शन। और ये सब क्यों होता है, बिकॉज जैसा हमने ये केस में भी देखा कि उसके पीछे प्रोटेक्शन डिफेंस कुछ नहीं है, डेल्यूजन प्रोटेक्शन डिफेंस इज नो। और उसको इसके लिए ऐसा लगता है कि मैं अच्छा काम करूंगी, अच्छा परफॉर्म करूंगी तो लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे। दैट इज लॉन्गिंग फॉर द गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये केस अगर एक हिसाब से देखा जाएंगे तो कितना कॉम्प्लिकेटेड था। हाइपोथायरोडिज्म था, डिस्लिपिडीमिया था, और प्लस उसका प्लेटलेट जो कम था। तो प्लेटलेट जो कम था वो पता नहीं आईटीपी रहेगा या दूसरा कुछ भी रहेगा, हमें पता नहीं, क्योंकि हमारा नॉलेज उतना है ही नहीं कि हम लोग हेमेटोलॉजी तक उतना डिटेल में स्टडी करें। ठीक है। तो यहाँ पे सीखने लायक क्या है कि हमने मेडिसिन किसके लिए दिया, डिस्लिपिडीमिया के लिए दिया, थायराइड के लिए दिया, या उसका चेस्ट पेन के लिए दिया, या किसके लिए हमने दिया। तो वी हैव गिवन मेडिसिन टू सिक, नॉट टू द सिकनेस। तो मेन यहाँ ये केस से सीखना यही था कि वी हैव गिवन मेडिसिन टू द सिक पर्सन। सो व्हाट इज सिक, जैसा कैंट सर ने लिखा है, व्हाट इज मीन्ड बाय सिक, इट इज अ मैन दैट इज सिक and to be restored to health, not his body, not the tissues बीमार नहीं है, बॉडी बीमार नहीं है, आदमी बीमार है।
फॉर नथिंग एग्जिस्ट विदाउट अ कॉज। अगर कॉज नहीं रहेगा तो उसका कुछ इफेक्ट भी नहीं रहेगा। द ऑर्गन्स आर नॉट द मेन इज प्रायर टू द ऑर्गन्स। फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट इज द ऑर्डर ऑफ सिकनेस एज वेल एज द ऑर्डर ऑफ क्योर। फ्रॉम मैन टू इज ऑर्गन्स एंड नॉट फ्रॉम ऑर्गन्स टू मैन। मतलब ऑर्गन पहले मेन का माइंड में जाएंगे, जो हम लोग बोलते हैं, वहां से फिर ऑर्गन में जाएगा। ये रिवर्स में सिकनेस कभी नहीं आएगा। ऑर्गन से लेके माइंड में सिकनेस कभी नहीं आएगा। हमेशा जो है मेन से लेके ऑर्गन्स में ही सिकनेस जाएगा। इसके लिए जो हम लोग ये माइंड मेथड करते हैं, डायरेक्ट माइंड पकड़ते हैं, तो हमें ये जल्दी से हम लोग उसको क्योर कर सकते हैं। द रियल सिक मैन इज प्रायर टू द सिक बॉडी। ठीक है, बॉडी सिक बाद में होती है। पहला जो सिक होता है दैट इज अ मैन हु बिकम्स सिक एंड देन द बॉडी बिकम्स सिक। दैट वाज द लेसन। So gratitude everyone, gratitude Dr. Liaquat sir, Dr. Mansi ma'am, Manoj sir, Dr. Marik sir, and gratitude all our mentors. Thank you sir. Stop sir. So मेरी थैंक यू। तरफ से इतना ही था। बहुत अच्छा बताया आपने। थैंक यू सर। और Thank वो you जो sir. मुझे लगा था कि जब वो जो दवा नहीं लेती है, क्योंकि इतनी दिन दवाई लेते लेते ना आदमी बोर हो जाता है, फिर मेडिसिन लेने की इच्छा नहीं करती, Yes sir. फिर यानी मेडिसिन अवर्जन 2 में चला जाता है आदमी। तो यहाँ पर कई बार फ्रिवुलस लेना जो है वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। Hmm. हम लोग फ्रिवलेस रूब्रिक बहुत फ्रिवलेसली ले लेते हैं। Yes sir. यही तो। दवाई लगा दो, चिपकानों का ग्रुप तो मिल गया। नहीं, सच में वो तो लाइफ और फ्रिवलेस, ये दो रूब्रिक को बहुत डर डर के यूज करता हूँ मैं। हाँ, ये दो रूब्रिक से मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है। और एक रूब्रिक है नाइव, नहीं, yes. ये रूब्रिक का डर लगता है मेरे को, डर। ये बहुत बहुत आराम से लेने का रहता है। वो वेरी गुड है मनोज भाई। और एक इसमें टिप ये है दिलीप, हाँ, जब भी डेस्परेट स्टेट आती है ना ऐसी, तो मान लो अगर से जस्ट फॉर एग्जांपल अपन अगर इसमें सीपीआर और कार्सिनोसिन में डीडी करते थे, तो ऐसे स्टेट में ऑलवेज यूज नोजोल। नोजोड। Okay. व्हेनेवर इट्स अ डेस्परेट स्टेट एंड यू हैव टू डीडी बिटवीन 2-3 रेमेडीज, पॉलीक्रेस्ट से मान लो परफेक्ट है, सीपीआर है, कार्सिनोसिन, तो फर्स्ट चॉइस यू शुड टेक Carsi. नोजोल Nozod. ऑलवेज, एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। क्योंकि अभी इसमें देखो इडियोपैथिक सिंपल था, प्लेटलेट क्यों नहीं था, क्योंकि वो रो रही थी ना बेचारी, खून के आंसू रो रही है जिंदगी के। आंसू कहाँ उसको, जो रो रही है वो खून के आंसू। तो माँ बाप थे, बहन ने तो नसीब, थैंक गॉड शी हैड गुड सिस्टर, एंड हस्बैंड भी डोमिनेटिंग। इतने प्लेटलेट कम होने के बाद भी हस्बैंड इतना अगर मुस्टंडा तगड़ा है, कुछ काम का नहीं है ना, सिर्फ बच्चे पैदा करने का काम का है। तो ये उसने वही दिखाया है भी ना, नहीं बाद में किधर। वही रूब्रिक और चाहता है ना, स्ट्रगल लाइफ हैज बीन लॉन्ग स्ट्रगल, क्या रूब्रिक है, स्ट्रगल लाइफ का या रूब्रिक। मतलब बहुत सारे रूब्रिक्स हम लोग रिट्रो में स्टडी कर सकते हैं। यस। बहुत अच्छा है, फैंटास्टिक। एंड मैंने और एक चीज देखा हूँ, लो सोशियो इकोनॉमिक तबके के अंदर कार्सिनोसिन बहुत ज्यादा आता है, स्पेशली इन द फीमेल्स एंड इन द चिल्ड्रन। तो यही अगर से इसको अगर से गुड, अच्छा अगर फैमिली सपोर्ट के बावजूद अगर ये लेडी सफर करती, तो देन परहैप्स वी वुड हैव गॉट टू कंसिडर। ओके सर। और आईपीआर का बहुत अच्छा, वेरी नाइस, फैंटास्टिक, वेरी सिंपल रूब्रिक्स, वेरी वेरी सिंपल। हाँ मनोज भाई, एकदम सिंपल रूब्रिक लेने का ये सबसे अच्छा फायदा है। वेरी गुड मानिक, समझ में आया ना, गो फॉर सिंपल रूब्रिक्स भाई, ऑलवेज। वेरी नाइस। सर वही तो सोचते हैं सर, हम भी सिंपल पे ही जाते हैं। एकदम सिंपल, सादे सादे रूब्रिक, ज्यादा और ये वो अवगढ़ ज्यादा इस पे ध्यान नहीं, है ना। वेरी नाइस, एकदम ईद की ट्रीट दे दी आज आपने। थैंक यू सर। आपको मेरी तरफ से ईद की गिफ्ट है। यस। हाँ, बहुत बहुत थैंक यू। बच्चों को सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि देखो कितना प्लेटलेट कोलेस्ट्रॉल वेलेस्ट्रॉल कुछ जानने का नहीं।
मेरे पास में केस आया था, आप बिलीव करोगे, 750 कोलेस्ट्रॉल था। उसको सब वो ही वाज पोस्टेड फॉर क्या कहते हैं एंजियोप्लास्टी, नहीं कर लेगा, हो गया, ठीक है। कुछ भी नहीं, 780। वेरी नाइस, यस मानसी, वी कैन वाइंड अप बेटर नाउ, Yes. है ना? Arva किसी madam. को कोई क्वेश्चन, if you have any question for Dilip sir, you can ask, guys. Yes, Mansi. Yes, Dilip sir. हाँ Arva, नहीं मुझे, हाँ नहीं, बहुत अच्छी तरह से मैं समझी हुई ये केस अभी, जैसे सर ने एक्सप्लेन किया ना, जो स्लाइड बाय स्लाइड, इट वाज एक्सेप्शनल. yes, इवन in fact my daughter was also sitting and hearing you. अच्छा Arva, vote Yes. of thanks. हाँ जी. Yes. So Dilip sir, it was really wonderful to have you on this platform. And it was our pleasure to listen to this case, which was so well explained with the rubrics. And thank you, Dr. Liaquat sir. It is just under your mentorship we are learning, and this journey will continue. So we will keep on learning from you, Dilip sir. We will keep on learning from Dr. Liaquat Namole sir. And thank you, everyone. Thank you, Mansi. Thank you, all our participants, for attending this session, and keep on learning and going forward in this journey. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. ये इसने मेरे को जितना तकलीफ दिया है कॉलेज में, किसी ने नहीं दिया है यार, वाली किसने? मैंने दिया है तकलीफ? झूठ? सबसे ज्यादा है कि दिलीप है, हाँ सबसे ज्यादा तकलीफ दिया है, मतलब इसका बैग भी उठाना पड़ता था मेरे को। But सबसे best friend, like buddies. We were buddies in college. Okay, दिलीप भाई, मनोज, थैंक यू so सर, much. थैंक यू, थैंक यू। Thank you, Namaste sir. and thank you so much.